Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Well, dear students, in previous topic we have talked about the story of the fisherman and the genie. Yes. So, in previous topic, in the story of the fisherman and the genie, we have discussed, dear students, that a fisherman lived with his wife and children close to the sea. The fisherman was very happy and he had promised himself not to throw the net into the sea more than 4 times every day. Okay, and we are going to talk about this particular day when 3 times he threw his net into the sea, but instead of fish he got nothing. Instead of that, he got first time a dead body of donkey, in the second a bag full of garbage, and in the third time he got the water full of shells and stones. And the when fourth time, when he threw his jar, his net into the sea, he found a copper jar in it, and the jar was tightly shut with a lid made of lead. There was a strange mark on the lid. Lid means cork, जो ढक्कन होता है. It looked like the seal of a king. On that lid, on that cork, there was a seal of a king. It looked like there was some strange mark. Well, he said, the fisherman thought, something is better than nothing. I shall sell this to a coppersmith. Coppersmith is a person who makes utensils and things with copper. He will give me some money for it. I can then buy some food for my wife and children. And in this way, 4 times he got a jar with tightly shut lid. Now what happened next? Let's see. So, dear students, please open page number 14 of your English textbook. Okay. Now let's see. The fisherman was curious about the jar. He wondered what was inside it. He shook it, but there was no sound. Then he took off the lid and poof! Out came a lot of thick smoke. The smoke spread all over the sky and took the shape of a monstrous scary genie. Now the fisherman looked at the jar very curiously. The fisherman was curious about the jar. He wondered what was inside it. He was thinking कि इस जार के अंदर में क्या होगा. He shook it. उसने हिला के देखा. But there was no sound. Then he took off the lid and poof! उसने उस लिड को ढक्कन को निकाला और एक आवाज हुई और अचानक क्या हुआ? What happened next? Oh my God, what happened? Then out came a lot of thick smoke और अचानक वहाँ पर धुआं निकलने लगा, धुआं उड़ने लगा. The smoke spread all over the sky. इस तरह से धुआं पूरे हवा में फैलने लगा. The sky and took the shape of a monstrous scary genie. और अचानक उस धुएं ने एक मॉन्स्टर्स, बहुत ही खतरनाक डरावना जीनी तैयार हुआ. वहाँ से जीनी अपीयर हुआ. ओके, मॉन्स्टर्स मीन्स जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर, डेविल और बीस्ट. ओके, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? लेट्स सी. The fisherman crossed on the ground, and the fisherman was very afraid, very much frightened. He was scared, and that's why he bent on the knee on the ground, crossed on the ground. वो घुटनों के बल डर के मारे जमीन पर बैठ गया. He was like a frightened rabbit facing a fierce hunting dog. उसकी स्थिति इस तरह से हो गई थी जैसे कि
किसी रैबिट की हो, और वो भी जब उसकी तरफ शिकारी कुत्ते जब उसको मारने के लिए दौड़ते थे, उस तरह से उनके सामने खड़ा हो, उस प्रकार से इस फिशरमैन की हालत हो चुकी थी जीनी के सामने। द जीनी वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड मॉन्स्टरस स्केरी। व्हाट हैड ही डन? फिशरमैन ने ऐसा क्या कर दिया था? द फर्स्ट थॉट ही हैड वाज दैट he should run away as fast as his legs could carry him. And at that time the first thought came into his mind. उसने अब क्या करना चाहिए था? तो सबसे पहला थॉट उसके मन में आया कि जितना पॉसिबल हो सके उतने जोर से, जितने ताकत से वो फास्ट दौड़ सके, जितने उसके पैर चल सकते और जहाँ तक लेके जा सकते उतना फास्ट वो दौड़े। एंड वैसा जब वो सोच ही रहा था, तब अचानक Then the genie spoke like a huge clap of thunder. Then अचानक जीनी spoke like a huge clap of thunder. गड़गड़ाहट कैसी भरी आवाज में उसने जीनी ने बोला, O king of all genies, O king of all genies, I shall never disobey you again. जीनी ने क्या कहा? O king of all genies, I shall never disobey you again. मैं इसके बाद में आपकी कभी अवज्ञा नहीं करूँगा, मैं हमेशा आपका आज्ञा का पालन करूँगा। और जैसे ही as soon as he heard, the fisherman heard such words from the monstrous scary genie, he felt little bit better. और उसको थोड़ा जान में जान आई। The fisherman felt a bit better. He said, What are you talking about? I am not a king. How did you come out of this jar? The fisherman said, What are you talking about? I am not a king. ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो कोई राजा नहीं हूँ। How did you come out of this jar? तुम इस जार से कैसे बाहर आए? Talk to me properly, roared the genie. टॉक टू मी प्रॉपरली, मुझसे अच्छे से बात करो। रोड द जीनी, गुस्से से, एंग्रीली ही स्पोक। अदरवाइज आई शॉल नॉट थिंक ट्वाइस, अगर नहीं तो मैं दोबारा विचार नहीं करूँगा। आई शॉल किल यू एंड बी ऑन माई वे, मैं आपको मारकर, मैं तुम्हें मारकर मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। तो सो टॉक टू मी प्रॉपरली। ओ माय, said the fisherman, and again the fisherman frightened. Oh my, said the fisherman, I have been so polite to you. I have been so polite to you. Why must you think of killing me? मैं तो आपसे बड़ी पोलाइटली बात कर रहा हूँ, आप मुझे मारने की बात क्यों कर रहे हो? फिर जीनी बोला, then said the genie, I have been shut up in this jar for 300 years, said the genie. What did the genie say? I have been shut up in this jar for 300 years. इस जार में मैं पिछले 300 सालों से बंद हूँ। तो इस बात पर the fisherman said, Then you should be happy. I have let you out. Why do you want to kill me? said the fisherman. तभी फिशरमैन ने कहा, देन यू शुड बी हैप्पी, अगर आप 300 सालों से यहाँ पर बंद थे इस जार में, तो आपने तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ से आज़ाद कराया। वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस तरह का सवाल फिशरमैन ने किया। देन व्हाट हैपेंड? देन द जीनी टोल्ड हिज स्टोरी। आई वॉज शट इनसाइड दिस जार by the king of all genies because I had disobeyed his rules, said the genie. Why the genie was in this shut inside the jar? Because he told fisherman that I was shut inside this jar by the king of all genies. King of all genies shut me inside this jar. Why? बिकॉज आई हैड डिसओबेड, क्योंकि मैंने अपने किंग्स ऑफ ऑल जीनियस की बात नहीं सुनी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू ओबीडियंट स्टूडेंट्स? डू यू ओबे और डिसओबे योर पेरेंट्स?
Yes, you obey. You are a good student, isn't it? Yes, aren't you? Yes, you are. So, when we disobey something, so we get, what did we get? We got punishment, and the same punishment had been given to this genie. And who had given the punishment? The king of all the genies. So, because I had disobeyed his rules, said the genie, I thought that if anyone freed me from this jar before 100 years had passed, I would make him a very rich man. मैंने सोचा था कि 100 साल के पहले अगर कोई भी मुझे इस जार से फ्री करेगा तो मैं उसे काफ़ी अमीर बना दूंगा. But what happened? Nobody set me free. I still had hope that I would be freed in the next century. But no one set me free. उसके बाद में 100 सालों में मुझे किसी ने फ्री नहीं किया. उसके बावजूद भी मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी. आई स्टिल हैड होप. मुझ में आशा थी कि दैट आई वुड बी फ्रीड इन द नेक्स्ट सेंचुरी. अगले शतक में मैं फ्री हूँगा. बट नो वन सेट मी फ्री. देन द थर्ड सेंचुरी स्टार्टेड. और इस प्रकार से तीसरा शतक स्टार्ट हुआ. आई थॉट दैट इफ आई वॉज फ्री आई वुड मेक द पर्सन हु फ्रीड मी अ किंग. और तीसरे शतक में मैंने सोचा कि जो भी मुझे यहाँ से फ्री करेगा मैं उसको राजा बनाऊंगा. आई वुड स्टे बाय हिज साइड एंड हेल्प हिम. मैं उसका साथ दूंगा और उसकी मदद करूंगा. और इस तरह से बोलते बोलते अचानक जोर से रोर करने लगा जीनी. देन व्हाट हैपेंड? देन द जीनी स्क्रीम्ड लाउडली एंड इट सीम्ड एज इफ द होल अर्थ शूक. और इस तरह से ही स्क्रीम्ड लाउडली, चिल्लाया. इस तरह से आवाज हुआ पूरे पर्यावरण में, वातावरण में, जैसा लगा कि पूरी धरती कांप रही थी. नो वन केम टू फ्री मी इन द थर्ड सेंचुरी. देन आई प्रॉमिस दैट आई वुड किल द पर्सन हु फ्रीड मी. सो टेल मी हाउ डू यू वांट टू डाई. और फिर अचानक जोर से दहाड़ की, जिसके दहाड़ से पूरी धरती कपकपाई, इस दहाड़ में उसने गुस्से से कहा, एंड नो वन केम टू फ्री मी इन द थर्ड सेंचुरी. और मैंने जब सोचा तो थर्ड सेंचुरी में भी मुझे कोई छुड़ाने नहीं आया. और तब मैंने देन आई प्रॉमिस दैट आई वुड किल द पर्सन. और तब मैंने शपथ ली, वो फ्रीड मी, जो मुझे फ्री करेगा मैं उसे जान से मारूंगा. सो टेल मी ओ फिशरमैन हाउ डू यू वांट टू डाई. तुम कैसा मरना चाहोगे? सो नाउ द फिशरमैन वॉज वेरी मच अफ्रेड. ही वॉज वेरी मच स्केयर्ड. Okay, now what did he say? Let's see. Please don't kill me, great genie. I have helped you. He begged, he requested. Please don't kill me, great genie. I have helped you, said the fisherman with folded hands. उसने हाथ जोड़ा और वो रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ डोंट किल मी, आई हैव हेल्प. मैंने आपकी मदद की, आपको फ्री किया, और आप वो जीनियों के जीनी, ग्रेट महान जीनी, मुझे मत मारो. वो रिक्वेस्ट करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा. प्लीज मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 16. देन व्हाट हैपेंड? द जीनी सेड, डोंट वेस्ट माय टाइम, सेड द जीनी. क्विक टेल मी हाउ यू वांट टू डाई. मेरा समय बर्बाद मत करो ओ फिशरमैन, जल्दी बताओ कैसा मरना चाहोगे. ओके सेड द फिशरमैन. ओके सेड द फिशरमैन. फिशरमैन को लगा कि अब कोई बचने के चांस नहीं है. ठीक है, बट आई डोंट बिलीव यू वर इन दैट स्मॉल जार. द फिशरमैन वॉज क्लेवर. ही यूज्ड अ ट्रिक, बट आई डोंट बिलीव यू वर एवर इन दैट स्मॉल जार. मुझे ओ जीनी, ओ ग्रेट जीनी, आई कांट बिलीव, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम कभी उस स्मॉल से इतने बड़े जीनी होकर भी तुम कभी उस छोटे जार में जा सकते थे. बिफोर आई टेल यू हाउ आई वांट टू डाई, कैन यू शो मी हाउ दे पुट सच अ gigantic genie like you into this jar? Before I tell you how I want to die, मैं आपको मरने के पहले मैं चाहता हूँ कि
Can you show me how they put such a gigantic genie like you into the jar? आप जैसे ऐसे महान बड़े वेरी लार्ज जीनी को उस जार में उनने कैसे डाला? And then because he promised to complete his promise, and that's why slowly the genie changed from a huge genie into smoke. और धीरे धीरे वो दिखाने लगा, वो जीनी चाहता था कि मैं इसकी आखिरी इच्छा पूरी करूं, और वो धीरे धीरे बड़ा जीनी वो स्मोक में कन्वर्ट हुआ और वो कहा जाने लगा, जार के अंदर जाने लगा. द स्मोक वेंट इनटू द जार. द ह्यूज जीनी टर्न्ड इनटू द स्मोक into smoke, and the smoke went into the jar. A voice came from the jar. और जब वो पूरा स्मोक जार के अंदर चला गया, उस जार के अंदर से वॉइस आया. वॉइस केम फ्रॉम द जार. नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुमको यकीन आया? ओ फिशरमैन, नाउ तुमको यकीन आया? मैं इस तरह से इस जार में गया था. As quick as lightning, the fisherman took the lead and shut the jar. As quick as lightning, जैसे उसने कहा, लाइट के प्रकाश के गति से दौड़ा फिशरमैन एंड टुक द लीड एंड शट द जार. उसने उस कॉक को, उस बॉटल के, उस जार के कॉक को पकड़ा और उस जार को बंद कर दिया. ही स्क्रूड द लीड ऑन टाइटली. और उसने उस लीड को, उस जार के ढक्कन को टाइटली स्क्रूड कर दिया था, मतलब अच्छे से टाइटली कस दिया था. The genie tried as much as he could to make the fisherman open the jar. He promised him all the riches of the world. और जब जीनी जार के अंदर में बंद हो गया, and the genie tried as much as he could to make the fisherman open the jar. फिशरमैन से गिड़गिड़ाने लगा कि वो जार को ओपन करे. He promised him all the riches of the world. उसने फिशरमैन को प्रॉमिस किया कि वो उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा. द फिशरमैन डिडंट केयर अबाउट बीइंग रिच एनी मोर. बट नाउ फिशरमैन वॉज वेरी क्लेवर. ही हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड. द फिशरमैन डिडंट केयर अबाउट बीइंग रिच एनी मोर. अब किसी तरह से फिशरमैन रिच नहीं होना चाहता. ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू बी सेफ फ्रॉम द बिग जीनी. सिर्फ वो इतना चाहता था, इस प्रकार के दुष्ट जीनी से वो सुरक्षित रहे. He picked up the jar and threw it back into the water. उसने उस जार को पकड़ा और जोर से समुद्र के पानी में फिर से फेंक दिया. And in this way, dear friends, dear students, the free genie again went back to sea and he was tightly shut into the jar. So from this story we have got some lesson that the moral of the story is that the person who helped us, we should not cheat him. Whatever promise we have kept, we have to keep all promises. The person who helped us, who is just godly to us, we should not cheat him, we should not dishonest with him, we should not make him फ्रॉड. ओके. सो क्योंकि जिनी की फिशरमैन ने मदद करने के बावजूद भी वो उसे मारना चाहता था, और इस प्रकार से जिनी खुद के जाल में फंस गया. ओके. सो वी शुड नॉट डिसोबे अदर्स, वी शुड नॉट डिसोबे एनीबडी, एंड वी शुड हैव टू लिव ऑनेस्ट लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.